Dear student, in previous video we have studied about the refraction of light through glass prism and dispersion of light and other phenomena. In this video we shall continue the next part of this chapter, that is atmospheric refraction. The cover of air around us is called atmosphere. जो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में एयर का जो इतना इन्वेलप है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. नियर द अर्थ सरफेस एज द टेम्परेचर गोज ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, जिस कारण एटमॉस्फेयर की थिकनेस भी एक जैसी नहीं रहती है. एंड the atmosphere above the earth's surface are not same in the optical densities. The cooler air layer behaves as optically denser medium for the light rays, whereas the warmer air layer behaves as the optically rare medium for the light rays. The refraction of light caused by the earth atmosphere is called atmospheric refraction. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हम कई ऐसे नेचुरल फिनोमिनास को डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड planet do not twinkle and the stars seems to be higher than they are actually, and advance सनराइज और सनसेट, या हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि सन कैन बी सीन अबाउट 2 minutes अर्ली द सनराइज एंड अबाउट 2 minutes डिले द सनसेट, और द नेचुरल फिनोमिना लाइक लूमिंग एंड मिराज. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स and the star seems higher than they actually are, or why the celestial body appear raised. This type of question can be understood with the help of this activity. This is earth atmosphere, जिसकी अलग अलग थिकनेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग थिकनेस होती है, and this is a point size starlight source, and we observe the star from the earth atmosphere. Between the star and the observer there is a large distance having atmosphere with changing refractive indexes, because the thickness is not always same. When a starlight coming from or entering to the earth atmosphere having denser medium, it bend toward the normal. जैसे हम रिफ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, when a light ray passes from a rare medium to denser medium, it bend toward the normal. So starlight will bend toward the normal, but due to atmospheric refraction, this is caused by atmospheric refraction, but the actual position of star look just appear raised. जब ये लाइन जो हम दिखाई दे रहे हैं डॉटेड लाइन से, ये इसकी अपरेंट पोजीशन है, जिस कारण से जो एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन में बार बार जो है चेंजिंग आ रही है. द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड the amount of starlight entering the eye flickers. इस करके हमें ऐसा लगता है कि कभी ये लाइट फेंट हो रही है, कभी जो है ब्राइट हो रही है, जिस कारण से ये लगता है कि स्टार क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं. और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही इनके एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन में चेंजिंग होती है. तो जिस कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये बॉडी
just appear raised. Stars twinkles, but planets do not twinkle. When we observe the planet from the Earth's surface, the planets are much closer to the Earth's surface and the same atmosphere. We know planet has no its own light. They glow with the help of sun's light. जब सन की लाइट प्लेनेट के ऊपर पड़ती है और ये जो लाइट सोर्स है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट होती है, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के थ्रू एटमॉस्फेयर पास होके ऑब्जर्वर के आईज तक आती है, तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है. इस कारण से द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्स will average out to 0, thereby nullifying the twinkling effect. जिस कारण से हमें जो प्लेनेट हैं ये ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं. Now we try to understand the concept of advanced sunrise and delay sunset. The actual sunrise takes place when sun is just above the horizon. ये ड्यूरिंग सनराइज जब ईस्ट डायरेक्शन में सन की पोजीशन जो है बहुत हॉरिजन में होती है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन द सनलाइट कमिंग फ्रॉम less denser air to more denser air then reflected downward as it passes through the atmosphere. The actual position and apparent position of the sun with respect to horizon, the time difference between actual and apparent sun's disk is about 2 minutes. Similarly, during sunset, with the same phenomena of atmospheric refraction, that we can still see the sun for about 2 minutes even after the sun has set below horizon. जैसे कि सनराइज के टाइम पर होता है ईस्ट डायरेक्शन में, वैसे जो है सेम ये फिनोमेना होता है सनसेट के टाइम में वेस्ट डायरेक्शन में. सो द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज लेंथन्ड बाय अबाउट 2 + 2, 2 मिनट सनराइज में और 2 मिनट्स डिले सनसेट में. इट मीन्स जो 4 मिनट का हमें बेनिफिट मिल गया. सो द डे वुड हैव बीन शॉर्टर बाय अबाउट 4 मिनट इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर का हमारे लिए ये बेनिफिट है कि हमें 4 मिनट का डे टाइम और ज़्यादा मिले. स्कैटरिंग ऑफ लाइट. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls on various types of suspended particles in its path, light separate in all directions randomly. जैसे सनरेज से लाइट आ रही है, सन से लाइट रेज आ रही हैं और उसके पाथ में वेरियस सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल अलग अलग साइज के. तो जब इन पे ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन. तो ये जो लाइट इसमें ओनली येलो और ब्लू कलर की लाइट स्कैटर हो रही है. ये इसका रीजन होता है कि जो पार्टिकल का साइज स्मॉल साइज होता है और वो जो
कम वेवलेंथ वाली लाइट है उनको स्कैटर करते हैं, जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं उनको स्कैटर नहीं कर सकते हैं। तो ओनली येलो एंड ब्लू कलर लाइट स्कैटर। रेड कलर लाइट मूव फॉरवर्ड बिकॉज रेड कलर हैज maximum or the more wavelength. Light has more wavelength. So the color of scattered light depend on the size of scattering particle. अब कौन सी लाइट स्कैटर हो रही है, कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है? स्कैटरिंग पार्टिकल पर। पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है। कैसे? जो होते हैं बिल्कुल लार्ज साइज के, जिसमें डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, दे स्कैटर द लाइट विच अपीयर वाइट या येलो कलर, जैसे डे टाइम में सन की लाइट होती है। एंड इन द एटमोस्फेयर द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ एयर स्कैटर मेनली द लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ लाइक ब्लू। इनकी अमाउंट एटमोस्फेयर में ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं। एंड इन द एटमोस्फेयर रेड कलर डू नॉट स्कैटर बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर वेवलेंथ। टाइंडल इफेक्ट, द फिनोमेना बाय विच suspended particles scatter light in its path is called Tyndall effect. When a beam of sunlight enter a dusty room through a window or a small hole, then its path become visible to us. जैसे कि उसमें मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एक बीम के फॉर्म में इधर उधर जो है स्कैटर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज नोन एज Tyndall effect. Tyndall discovered that when a white light consisting of 7 colors is passed through a clear solution having suspended particle in it, then the blue color of white light having shorter wavelength is scattered much more than the red color light having the longer wavelength. So the blue color light present in white sunlight scatter much more easily than the red light. We can see these phenomena in nature as the blue color of the sky and color of water in the deep sea, reddening of the sun at the time of sunset and sunrise. As a question of why is the color of clear sky is blue for us but dark or black for the astronaut. Explain why the sun is at overhead at noon is appear white but the same sun is near the horizon at sunset it appears red. Why are the danger signal light red in color? इन सब क्वेश्चन का आंसर हम इसके हेल्प से दे सकते हैं। Why the sun appear red at sunrise and sunset? सनराइज मॉर्निंग के टाइम में और सनसेट इवनिंग के टाइम में सन का कलर हमें रेड दिखाई देता है, जबकि डे टाइम में हमें ब्राइट दिखाई देता है। बिकॉज द सन एंड द सराउंडिंग स्काई appear red at sunrise and sunset because at that time most of the blue color present in sunlight has been scattered out and away from our line of sight, leaving behind mainly red color in the direct sunlight beam that reach to our eyes. इस करके हमें
जो है रेड कलर दिखाई देता है। क्या होता है, जब मॉर्निंग टाइम में ईस्ट डायरेक्शन में हम सन को देखते हैं तो नियर हॉरिजॉन द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, not only time of sunrise, at the sunset also it has to cover greatest distance through the atmosphere to reach us. During this long journey of sunlight, most of the shorter wavelength blue color present in it is scattered out and away from our line of sight. So, the light reaching us directly from the rising sun or setting sun consists mainly of longer wavelength red color, due to which the sun appear red. But at the noon सन इज ओवरहेड, सन बिल्कुल ओवरहेड होता है। दिस टाइम पर इट हैज टू कवर रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। द सन अपीयर वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर scattered. So during sunrise or sunset sun appear red, but at time of day or the noon sun appear black. Experiment to study the scattering of light, ये दिखाने के लिए कि क्यों स्काई का कलर ब्लू होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन का कलर रेड होता है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम पहले क्लियर सोल्यूशन लेते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी 11.3। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कंटेनर लेते हैं जिसमें क्लियर सोल्यूशन फिल करते हैं और लाइट सोर्स एस से थ्रू कन्वेक्स लेंस वी पास द स्ट्रॉन्ग लाइट, देन the light passes through the clear solution, reach to the screen, but there will no such color appear. जब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसा कलर अपीयर नहीं होता है, जैसे कि वाइट और या येलोइश कलर जो होती है वो लाइट दिखाई देती है। अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास कंटेनर में नियर अबाउट 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं। इसका 2 लीटर वाटर में क्लियर वाटर लेकर के इसका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं और इसमें 1 to 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। इस सेटअप में वैसे ही फिर लाइट पास करते हैं। हम देखते हैं कि जब सोडियम थायोसल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक सल्फर के पार्टिकल यहाँ प्रेसिपिटेटिंग होना शुरू हो जाते हैं। जब लाइट रे पास करती है उन माइन्यूट पार्टिकल से तो ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक के तीनों तरफ ब्लू कलर लाइट स्कैटर हो जाती है और जबकि स्क्रीन में केवल हमें पहले क्रिम्सन रेड कलर, पहले रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देती है। ये प्रूव करता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही सन ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज रेड कलर का होता है और इसी को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। कहीं पर भी डेंजर का साइन होता है वो रेड कलर का होता है, चाहे कोई भी व्हीकल के पीछे रेड कलर लगाया हो या ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर लगाया होता है। ये ऑल दीज रेड कलर
या कहीं पर और भी डेंजर साइन होता है, हॉस्पिटल में भी ऐसे साइन को लगाते हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं होती है। जब काफ़ी फॉग और फॉगी डे होता है तो रेड लाइट लगा देते हैं आगे से, फॉयल पेपर लेके रेड कलर का उसे भी लगा देते हैं, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग, इसकी वेवलेंथ के कारण ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होती है और ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है पहुंच जाता है। सो scattering of light in colloidal solution to show how the sky appear blue and the sun appear red at sunrise